एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। गुरु प्यारे साध संगत जी, इस क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਕ 1008 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ। मारू महला नवा अब मैं कहाँ करूं री माई, सगल जन्म बिख्यन स्यों कोया सिमरियो नाहे कन्हाई। काल फांस जब घर में मिली तैं सुध सब बिसराई, राम नाम बिना या संकट में को अब होत सहाई। जो संपत अपनी करमानी छिन में पई पराई, कहो नानक ये सोच रही मन हर जस कबहू न गाई। जो संपत अपनी करमानी इनमें पई पराई, कहो नानक यह सोच रही मन हर जस कबहू न गाई। आओ इस शब्द की विचार दे नाल जुड़न का यतन करिए। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਾਉ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਬ ਹੁਣ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਕੇ, ਅਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹਾਂ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਲਾ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਵਾਏ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੋ ਤੋ ਖੱਟਣ ਵੇਲ ਤਾਤੂ ਰਤਾ ਦੁਨੀ ਸਿਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ
ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਐਸ਼ੋ ਐਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਿਵਾਏ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ। ਅਗਲੇ ਜੋ ਬੰਦ ਹੈ ਰਹਾਉ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗਲ ਜਨਮ ਵਿਖਿਆਨ ਸਿਓ ਖੋਇਆ, ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਸਿਮਰਿਓ ਨਾਹੇ ਕਨਹਾਈ। ਇੱਥੇ ਕਨਹਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਨਹਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਆਇਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, तो ਇਹ ਪਰਿਆਇਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। तो ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਲਈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਖੁੰਝ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, जब लग जोत काया में वरता है, आपा कछु न बूझे, लालच करे जीवन पद कारण, लोचन कछु न सूझे। ते लोचन अखा नूं कुछ माया दा ऐसा उते प्रभाव चढ़िया हुंदा है, माया दे विच इन्ना अन्ना होया हुंदा है कि उस नूं ये जो मनुखा जन्म दे विच जो करन वास्ते आया है, वो उस नूं करदा नहीं ते एवें अपना जीवन जिहड़ा है वो व्यर्थ गुरा देता है। हुण अगली जिहड़ी गल गुरु तेग बहादुर साहब जी सानू फरमा रहे कि काल फास जब घर में मेली, तैं सुध सब विसराई। हे मां, जदों जमराज मनुख दे गल विच मौत दी फाही पा दिंदा है, तदों उस दी सारी सुध बुध भुला देता है। भाव सारी उम्र जिहड़ी है वो विषय विकारां विच गवा दित्ती, ते जिस वेले अंत समा आया, उस वेले जिस वेले जम सामने आ गए, मौत सामने आ गई, दिख रही है, गल दे विच जमा ने रस्सी पा लई, इस संसार तो विदा होने का समा आ गया, तो फिर वो जड़ी माया की जड़ी सुध बुध सी उसकी वो सारी भुल गई। तो हुण सामने उसनूं मौत नज़र आ रही है, तो वह दिल जड़ा है वो घबरा रहा है, क्योंकि मैं अपने जीवन दे विच, अपने जन्म दे विच जड़ा समा परमात्मा का सिमरन करन दा सीगा, सेवा करन दा समा सी, चंगे गुण इकट्ठे करन दा समा सीगा, वो मैं जड़ा है वो विषय विकारां दे विच लगा दिता। दिखिया अजू सुरत सुख आसा, कैसे होए है राजा राम निवासा। अब अंत समा भी आ गया है, ते अंत समय विच भी वो जड़ा है वो विषय विकारां दी ही जड़ी है वो सुपने लै रहा है। विषय विकारां दे विच अपनी सुरत जड़ी उसने जोड़ी हुई है। राम नाम बिन या संकट में वो अब होत सहाय। उस विपता वाली घड़ी विच जिस वेले इस संसार दे विचों जाना है, उस वेले उसनूं संकट नजर आंदा है कि मैं तो बड़ा ऐशो इशरत विच अपना सारा समा जड़ा है वो लंघा दिता है, लेकिन हुण मैं कुछ कर नहीं सकता, बड़ी जड़ी है वो मुसीबत बन गई है। तो हुण इस वक्त कोई भी जड़ा है इस आत्मक मौत के सहम तो मैनू कोई नहीं बचा सकता। भाव सिर्फ हरि का नाम ही जड़ा है वो बचा सकता है। उस विपता विच परमात्मा के नाम तो बिना होर कोई भी मददगार नहीं बन सकता। जमा की फाही तो आत्मक मौत के सहम तो सिर्फ हर नाम ही बचाता है। आप हरि का नाम ही बचा सकता है। तो वही जड़ी गल रहाव दे विच सतगुरु जी ने सानू फरमाई है कि वेला लंघन तो बाद हुण कुछ भी किया नहीं जा सकता, सिर्फ पछतावा ही पछतावा रह जाता है। तो क्योंकि परमात्मा का सिमरन नहीं किया, वाहिगुरु दे नाल प्रीति नहीं लगाई, तो जिस वेले प्रीति नहीं लगाई तो फिर ये पछतावा आ गया, सामने मौत नजर आ रही है। तो परमात्मा के नाम तो बिना कोई इस औखी समय के अंदर कोई छड़ा नहीं सकता, क्योंकि हरि का नाम ही जड़ा है जय मारक के गणे जाहे ना कोसा, हर का नाम वहां संतोषा। जय मारक महा अंध गुबारा, हर का नाम तै सग उजियारा।
उस समय दे अंदर केवल प्रभु का नाम ही साड़ी सहायता कर सकता है। हुण सतगुरु जी अगों सानू फरमा रहे हैं कि कीता की है इस जन्म के अंदर, जो संपत अपनी करमानी, जड़ी संपत्ति माया जड़ी इकट्ठी की, ऐशो इशरत असी इकट्ठी की, छिनवे पई पराई, कि जिस वेले उस विच ऑन जड़ा सी चल रहा माया दा जिंदगी दा उस विच ऑफ हो गया, तो वो जड़ी भी मेरे को माया सीगी, जो धन पदार्थ सीगा, वो सारा ही धन पदार्थ जड़ा है वो पराया हो गया। और ये मनुख तेरे दे नाल लेट लग गया या एक्स लग गया कि तेनू हुण ये कहन गया भी ये ते मृतक शरीर है। तो तन त्यागत ही सुनो रे जड़, प्रेत बखान त्रिया भजई है, पुत्र कलत्तर सो मित्र सखा, ये बेग नकारो आए सदई है। कि तेरा तन त्यागदे ही की होया, प्रेत बखान त्रिया भजई है, कि वो जो स्त्री जो सदा ही नाल रहिंदी है, लेकिन जिस वेले ये प्राण त्याग देते तो उस वेले वो भी पासे हो गई कि ये तो हुण पास्ट हो गया। प्रेत दा भाव है पास्ट हो गया, कि ये हुण रहा ही नहीं, प्रेजेंट विच उहदे जान ही कोई नहीं, सिर्फ मिट्टी है। पुत्र कलत्तर सो मित्र सखा, पुत्र कलत्तर सो मित्र सखा, ਧੀਆਂ पुत्र और फ्रेंड्स ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਬੇਗ ਨਕਾਰੋ ਆਏ ਸਦਈ ਹੈ। ਬੇਗ ਨਕਾਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਆ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੋ ਸੰਪਤੀ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਵਨ ਭੰਡਾਰ ਮੀਨਸ ਮੂਵੇਬਲ ਐਂਡ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਧਰਾਗੜ ਜੇ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਜੇ कोई माया जड़ी है, कईयां ने जमीन विच भी गढ़ के रखी हुंदी है, कईयां ने बेनामी प्रॉपर्टियां जड़ियां बनाईयां हुई हैं, सब कुछ कीता होया है। वो सारियां जड़ियां भवन भंडार धरागढ़ जे तक, छाड़त प्राण बगान कई है, कि छड़ प्राण निकलदे ही वो बगानी हो जाती है, उस मनुख दी नहीं रह जाती है। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 33 सोईया का जो अखीरला सोईया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ कि चेत रे चेत अचेत महापश, ये महामूर्ख, ये मूर्ख महापशु बिरती वाले मनुख परमात्मा नू चेतना चाहिए है, क्योंकि अंत की बार अकेलो ही जाई है, कि अंत वेले जड़ा है अकेला ही जड़ा जाना पैंदा है। तो जड़ी गल रहाओ दे विच सतगुरु जी ने सानू समझाई सी, उस नाले विचार जुड़दा है कि सगल जन्म विखियन स्यों खोयो, सिमरियो नह कनाई, कि उस परमात्मा का सिमरन नहीं किया और अपने जड़े अमोलक स्वास सन उन्होंने विषय विकारां दे विच जड़ा है वो बतीत कर दिता। तो जो संपत अपनी करमानी, छिनमै पई पराई, वो छिन विच मात्र ही, इन वेरी मोमेंट जिस वेले स्वास निकले वो सारी संपत्ति जड़ी है वो पराई हो गई। जड़े भी फ्रेंड सर्कल है, जड़ा भी तुहाडा बिजनेस सर्कल है, जड़े भी अपना कुनबा है, अपना परिवार है, अपनी बरादरी है, वो सारिया चीज़ां जड़ियां वो खत्म हो गई, वो तेरे नाल उसका कोई संबंध नहीं रहा। कहो नानक यह सोच रही मन, नानक आखदा है उस वेले मनुख के मन विच पछतावा रह जाता है कि परमात्मा की सिफत सलाह कदे भी ना की। आप कि भूतकाल नू वर्तमान समझदा है, ये हालत सदा ही हुंदी रहिंदी है कि अपने आप नू सामने रख के जगत की आम दशा जड़े हैं वो गुरु साहब जड़े हैं सानू समझा रहे हैं। तो ये जो सतगुरु जी ने सानू बख्शिश की है, इसनू असी होर गुरबाणी दे विचों असी इसे विचार नू समझिए कि जिस वेले अंत वेला आंदा है, काहे कीजत है मन भावन, मारू राग दे विच कबीर साहब ने सानू 1104 अंक के उपर सुभाएमान इस शब्द विच सानू समझाए हैं कि क्यों अपनी मन मर्जी करता रहा है, क्यों चंगे पासे क्यों नहीं गया तू, क्यों भैड़े बंदियां की संगत विच लगा रहा, विषय विकारां नू इकट्ठा करता रहा। देखिया आजू सुरत सुख आसा, कैसे होए है राजा राम निवासा, कि जिस वेले सुरती विषय विकारां विच लगी हुई है तो उस वेले परमात्मा का सिमरन नहीं किया तो फर्क होया कि जिवें असीं हुणे मेन शब्द विच विचार की है, जब जब आए केस ते पकड़ा,
ਤੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਕੜਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਬ ਜਮ ਆਏ ਕੇਸ ਤੇ ਪਕੜੈ, ਜਦੋਂ ਜਮਦੂਤ ਆ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਸਹਿਮ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਹਿਮ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਹਿਮ ਜਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। तो ये ਜਿਹੜਾ मौत ਦਾ ਸਹਿਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹਿਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। हे ਨਾਨਕ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਨ ਸਾਜਨਾ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ, ਉਹ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਐਸੇ ਚਵੈ, ਚਵੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੋਲਣਾ, ਸਿੰਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਐਸੇ ਚਵੈ ਕੀਤੋਂ ਭਵਨ ਪੁਨੀਤ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਬਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਉਹ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਸਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਕੀਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਜਾਗ ਲਗਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਵਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਸਵਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਯੂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾਹ, ਦਰਗਾਹ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹੋ, ਕਿ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਓਏ ਓਏ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣੀ ਪਏਗੀ। ਆਏ ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਆਏ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸ਼ੁਭ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ 1106 ਅੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਪਛਤਾਹੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਛਤਾਵੇਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਹਿਮ ਤੇਰਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੇ ਮਨ ਹੁਣ ਹੀ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਵਿਆਹ ਜਾਣਤੇ, ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ हैवर ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇ ਸੰਜਰੀਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਕਈ ਜਨਮ हैवर ਬਿਰਖ, ਬਿਰਖ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਦ ਵੀ ਹਨ, ਬੈਲ ਵੀ ਹਨ। ਹਰ ਬਿਨ ਬੈਲ ਬਿਰਾਨੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਾਟੇ ਨਾਕਨ ਟੂਟੇ ਕਾਂਦਨ, ਇਹ ਦੋਏ ਕੋ ਪੁਸ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੋ ਦਿਵਸ ਡੋਲਤ ਬਨ ਮਈਆ, ਕਬੂ ਨਾ ਭੇਟ ਗਈ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਕਹਿਓ ਨਾ ਮਾਨੋ, ਕੀਆ ਆਪਣਾ ਪਈਏ। ਕਿ ਹੁਣ ਕਹਿਆ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੈਲ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਇਸ ਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ,
क्योंकि तेरे अंदर ये प्रोग्राम ही नहीं है कि तू पशु होकर के तू साध संगत कर सके या तू प्रभु का सिमरन कर सके। तो पापी जीरा लोभ करत है, आज काल उठ जाएगा। विकारां विच फसी हुई तेरी कमजोर जिंद धन पदार्थ का लोभ कर रही है। ये आम साडे नाल हुंदा है। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਜ ਕਾਲ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਤੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿੰਦ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਲੋਭ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ कूच कर जाएगा। तेरा इथे पीछे माटी माटी होई एक, रोण हारे की कौन टेक, कौन मुआरे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारे। तो चलत पिया कि ये जो चंगा भला तुरदा फिरदा व्यक्ति सी, बोलदा सी, गल्लां बातां करदा सी, हसदा सी, खेडदा सी, भंगड़े पांदा सी, हुण किथे चला गया? ਉਹਦੇ अंदर माया दे बोल ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ चले गए? तो लालच लागे जन्म गवाया, माया भरम भुलाएगा। हे मन, तू लालच विच फस के जीवन अजाई गवा रहा है, माया दी भटकना विच खुंझिया फिरदा है। धन जोबन का गर्भ ना कीजिए। भगत कबीर जी मारू राग दे विच बड़ा सुंदर जड़ा है वो सानू समझा रहे हैं, अकल दे रहे हैं कि यह धन जोबन का गर्भ ना कीजिए। कि जेकर तुहाडे कोल धन आ गया, जे तुहानू अच्छी पोजीशन किते मिल गई है, तो फिर तुसी उहदा हंकार ना करो। हंकारिया सो मारिया, जे किसी जड़ा भी हंकार विच आ गया वो समझ लो मर गया। जेड़े हंकार विच आएगा वो जरूर गिरेगा, क्योंकि हंकार एक बहुत लोभ और हंकार बहुत डूंगी खड्ड है, इहदे विचों निकलना असंभव है। धन जोबन का गर्भ ना कीजिए। कि होएगा कि जे गर्भ करेगा तो कागज ज्यों गल जाएगा। कि कागज वांग मौत आउंते कागज वांग गल जाएगा। तू उस सिचुएशन ਨੂੰ फेस नहीं कर सकेगा, तो बिल्कुल तू मतलब है अपना जीवन जड़ा है व्यर्थ गुआ के इस संसार तो जाएगा। वही गल जी पहले कबीर साहब ने उत्ते समझाई सी सानू, वही गल नूं दोबारा समझा रहे हैं कि जो जम आए केस गए पटकै। जिस वेले ये मन जदों जम ने आके केसां तो फड़ के तैनू पुंजे पटकाया, तदों तेरी उस अगे कोई पेश नहीं जाएगी। जो जम आए केस गह पटकै, तां दिन किछ ना बसाएगा। उस वेले फिर तेरे कोई पेश नहीं जाएगा। बसाएगा का मतलब है कि पेश नहीं जाएगी, गह का मतलब फड़ के। सिमरन भजन दया नहीं कीनी। जो गल गुरु तेग बहादुर साहब जी इस शब्द के अंदर जिसनों असीं विचार रहे है, विचाराधीन है, ਉਹਦੇ ਚ गल कही सीगी कि तू अपने जीवन काल के अंदर ਜਦੋਂ तेरे श्वास चल रहे सन, तू सिमरन नहीं किया, भजन नहीं किया। सिमरन और भजन इको ही जड़ी है प्रयवाची शब्द हैं। दया नहीं कीनी, अपने अंदर तेरे दया पैदा नहीं हुई, तो मुख चोटा खाएगा, फिर तेनू चोटा खानिया जड़ियां पैणगियां। तैन अर क्या पुराण सुन कीना। कि तू अगर किते तू तेरे कन विच कोई गल पै भी गई धर्म की, तो तू उन्होंने अपने जीवन में अपनाया नहीं, उस बारे अपनी सोच नहीं लगाई। तो होया कि वो जड़ी तेरे तौतन जड़ा कि तू अपने जीवन दे विच जड़ी तैन और क्या पुराण सुन कीना। पुराण तो भाव है धार्मिक ज्ञान, इसनूं ज्ञान दे विच रूप विच लवांगे। मिथ्यासक जड़े पुस्तकां ने हिंदू धर्म दियां, उस वास्ता सिर्फ इत्थे वर्णन नहीं है। ते उत्थे ये गया कि वो जड़ी तैन और क्या पुराण सुन कीना, अन्न पावनी भगत ना उपजी। किसी नाल शेयर नहीं किया, किसी की सेवा नहीं की, अन्न पावनी भगत ना उपजी। तेरे अंदर भगती नहीं पैदा हुई। भूखे दान ना देना, किसी भुखे व्यक्ति नूं तू दान नहीं दिता। काम ना बिसरियो, क्रोध ना बिसरियो। तेरे अंदर काम प्रबल रहा है, तेरे अंदर क्रोध प्रबल रहा है, तेरे अंदर लोभ प्रबल रहा है, तेरे अंदर मोह प्रबल रहा है। लोभ जड़ा है वो जड़ा तेरे अंदर प्रबल रहा है। अन्न पावनी भगत ना उपजी, भूखे दान ना दीना। काम ना बिसरियो, क्रोध ना बिसरियो, लोभ ना छूटियो देवा। पर निंदा मुक्ते नहीं छूटी।
कि निंदा भी करता है कि जिथे प्रभु की उस्तत करनी सी अपनी इस रचना नाल, इस रचना दे नाल, जिवें गुरु अमरदास पातशाह जी ने कहा कि रचना किस लिए मिली है, ये रचना तू अनरस रा, ये रचना तू अनरस राज रही, तेरी प्यास ना जाए, प्यास ना जाए होरत किते जेचर, हरस पल्ले ना पाए, हरस पाए पल्ले पिए हरस, बहु ना तृष्णा लागे आए। ये रस नूं तू, नाम दे रस नूं तू छकना सीगा है जेवा। ते ये भी चेतावनी बाणी सानू मिलती है कि रे जेवा करो सतखंड, जाम ना उचरच उचरत श्री गोबिंद, कि ये जेवा अगर अनरस विच रची है तो ये 7 टोटे कर देने चाहिए ने, क्योंकि इसने इस रचना नूं जिहड़ा है मुबारक नहीं किया, प्रभु का सिमरन नहीं किया, इन्होंने सिमरन भजन दया नहीं कीनी तो मुख चोटा खाएगा, कि उस मुंह के उपर तू चोटा खाएगा। फिर धर्म राय जब लेखा मांगा, कि जिस वेले वो अवस्था हो गई, सहम की अवस्था आ गई, तो उत्थे की मौका आया कि धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लैके जाएगा। मारू राग दे अंदर कबीर साहब अगों इस विचार नूं अगे तोर रहे हैं कि हे मन, जदों धर्मराज ने तैथों जीवन विच कीते कम्मां दा हिसाब मंगिया तां की मूँह लैके जाएगा उसके सामने। कहाँ ते खटिया कहाँ गवाया, हर फरमान दरगाह का है, दरगाह का है, हर फरमान दरगाह का है। की फरमान दरगाह आया कि चलो शताब दीवान बुलाया, हर फरमान दरगाह का है, कि उत्थे जाकर के फिर लेखा लेखा तू कौन लेखा मंगे बाणिया, वो तो फिर ते लेखा एक एक पल का, एक एक सेकंड का, तेरे एक एक श्वास का लेखा होना है। कि तू उत्थे की अपनी जाके तू अपनी शक्ल की दिखाएगा। जिवें असी श्लोक की गल की है कि जड़े नाम तैन साजना जन्म पदारथ जीत, नानक धर्म ऐसे चवे की तुन पौन पनीत, कि वो तो खुश होणगे कि नाम जप के आया, पर तू की लैके सामने परमात्मा की दरगाह के अंदर होली प्रेजेंस विच जाएगा, आप शर्मिंदा ही होएगा। कहत कबीर सुनो रे संतो, सात संगत तर जाएगा। कबीर साहब आखते हैं कि हे संतजनों सुनो, सात संगत विच रह के ही इस संसार समुद्र तो तरिया जा सकता है, होर कोई तरीका नहीं। ये भी गुरु साहब ने सानू समझाया है कि कोई भी भैन भरा, कोई सक्का रिश्तेदार, कोई धन दौलत, किन्नी भी किदियां एफडियां होन, किन्नियां भी कारां होन, किन्नियां भी वड्डियां बिल्डिंगां होन उसके कोल, लेकिन ये सारियां किसे काम नहीं आ सकती, क्योंकि ये सारियां जड़ियां पिछे रह जानियां ने। इस तन और धन की, ये तन जड़ा है जो तन उपजो संग ही सो भी संग ना हुआ। गुरु तेग बहादुर साहब ने फरमाया कि ये जड़ा तेरे नाल ही पैदा होया, भाव शरीर जदों आत्मा पै गई तो ये तेरे शरीर की क्रिया शुरू हो गई, तो ये शरीर तो नाल ही पैदा होया। जो तन उपजो संग ही सो भी संग ना हुआ, वो भी तेरे नाल नहीं गया, वो पिछों रह गया, मिट्टी का मिट्टी हो गया। तो इत्थे सानू समझाया कि वैदो ना वाई भैणो ना भाई, कि कोई किन्ना भी वड्डा उस वेले मदद जड़ा वैद है, जड़ा डॉक्टर है। मैं इत्थे गल कवां कि सिकंदर द ग्रेट जिस वेले उसका अंत समा आया, बीमारी उसनूं पै गई, तो उसने अपने सारे जड़े वैद सन उन्होंने इकट्ठा बुलाया, तो उन्होंने कहा भी तुसी मेरे तो तुसी जो मंगदे हो मैं तुहानूं देण नूं तैयार हां, मैं तुहानूं धन दौलत मेरे को जिन्नी है वो सारी तुहानूं मैं दे देना। उन्होंने कहा जी बादशाह तेरे हुण सवास खत्म हो गए ने, तू हुण अगे जी नहीं सकता, बस हुण तू परमात्मा नूं अपने याद कर ले, रब नूं। वो कहने लगा कि ਉਹਦੇ फिर मन में फिर भी सीगा कि मैं एडा वड्डा राजा वां, मैं दुनिया नूं जितण वास्ते निकलिया हां, ते मैं किवें मर सकदा इस संसार तो, मैं किवें जा सकदा। तो उसने कहा भी मैं अद्धा राज, जिहड़ा डॉक्टर सी, जिहड़ा चीफ सर्जन सी या चीफ मैडिकल अफसर सीगा उन्हां दा, वो जहाज भी जा रहे सन इत्थों पार करके मकदूनिया वापस जाना सी उन्होंने। तो उन्हें कहा भी मैं तैनूं बादशाह तुहानूं राज होर नहीं, मैं मतलब कि सवास होर नहीं दवा सकता, भावें तुसीं सारा ही राज मैनूं क्यों ना दो। अंत वेले फिर की होया कि सारा इत्थे दा इत्थे ही, भवन भंडार तरागढ़ जे तक छाड़त प्राण बेगान कहे। वो सारे बेगाने हो गए कि उस तो किसी भी चीज ने जो संपत अपनी करमानी छिन में पाई पराई, वो छिन मात्र भी जिस वेले श्वास निकल गए, हुण वो सिकंदर नूं बिलोंग नहीं करती,
सिकंदर का तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन हर मनुख मात्र जिस वेले भी उस संसार तो जाएगा पिछे की रहेगा। गुरु तेग बहादुर साहब ने सानू समझाया है श्लोकां दे विच, नाम रहो साधु रहो गुरु गोबिंद, कह नानक इस जगत में जिन किन जप्यो गुर मंत्र। जिन्हें गुरु का मंत्र जपिया है, गुरु की सिक्ख्या नू अपने अंदर धारण किया है, अपने जीवन में सवारिया है, अपने अंदर गुण जड़े हैं उन्होंने लैके आया है, ऐसे व्यक्ति जड़ा है वो जड़ा है संपत्ति भावें इत्थे रह गई है, लेकिन नाल जिहड़ी गई चीज़ है वो परमात्मा की भगती और सेवा और सिमरन जो इत्थे उसने किया है। वैदों ना भाई भैनों ना भाई, ना भैन ते ना भरा, कोई भी नाल नहीं जा सकता। तो जे को कहे भी बड़ा प्यारा सी साडा भरा, साड़ी भैन बड़ी पराई सी, साडा पुत्र बड़ा प्यारा है, माँ कहे मैं नाल जानी हाँ, भैन कहे मैं नाल जानी हाँ, भरा कहे मैं नाल जाना, भाई वो कोई भी उस वक्त मदद नहीं कर सकता। तुहाडी जगह के उपर कोई होर नहीं मर सकता। जड़ा मरना है तो आप ही मरना पैना, जो उपजो सो बिनस है। पर वो आज के काल नानक हरगुण गायल है, छाड़ सकल जंजाल, सारे जंजालों नूं छड्डण दी जिहड़ी है, छड्डण दी गल जिहड़ी है गुरु साहब ने, गुरु तेग बहादुर साहब ने सानू समझाई है कि उस वेले वड्डे तो वड्डा हकीम, वड्डे तो वड्डा साडा रिश्तेदार, माँ पुत्र भैन भरा जिहड़े बड़े क्लोज हुंदे ने, वो कोई भी जड़ा है इत्थे सहायता साडी नहीं कर सकता। हुण साडे ते अवस्था आंदियां कि जिवें असी बड़ा सुंदर साडा चेहरा हुंदा है, हैल्थ साडी बड़ी वधिया हुंदी है, लेकिन जदों थोड़ा थोड़ा बुढ़ेपे वाले पासे बंदा जाता है तो उस वेले आम तौर पर कहा जाता है भी जिहड़ियां कनपट्टी दे कोल जिहड़े वाल ने सब तो पहला चिट्टे होने शुरू हो जाते। तो इन्होंने विद्वान ये भी कहते हैं भी तुहानूं तो चिट्ठी आ रही है, ये चिट्ठियां आ रही ने, जिहड़े तुहाडे वाल चिट्टे हो रहे हैं, तुहाडीआं अखां दी रोशनी घट रही है, तुहाडे सुनन दे कन्नां दी शक्ति खत्म हो रही है, तुहाडे दिमाग दे विच मैमरी जिहड़ी है वो लास हो रहा है, तो चलन फिरन दे विच तुहाडी वो रवानगी नहीं जिन्नी जवानी विच हुंदी सी, तो काम करन दी शक्ति भी घट गई। तो भाई उस वक्त अवस्था आ गई, बिरध भयो सूझिया नहीं। श्लोक 12 तो वधीक विच नौवें पातशाह जी ने यह सानू समझाया है 1426 अंक के उत्ते कि बिरध भयो सूझिया नहीं। भाई बुढ़ा हो गया है, ये थारे सारे जड़े तेरे जड़े फैकल्टी सन, ये सारिया जड़ियां ने उन्होंने तेरा साथ छड़दियां जा रही हैं। मैं तो एक गल बेनती करा आप जी कि एक सानू साखी दे विच लोकी कहानी सुनाते सन, जिन्होंने साखी सुनाते हैं कि एक बंदा सीगा बड़ा धनाड़ सी, ते वो बंदा जो जिस वे मरन लगा तो उन्होंने कहता बई मेरी धर्मपत्नी कितने है, उन्हें कहा जी ए खड़ी है। उन्हें कहा जी तुहाडा वड्डा पुत्र कितने है, कहता जी ए खड़ा है। उन्हें कहा मेरी लड़की कितने है, कहता जी ए खड़ी है। वो मेरा जड़ा सैकटरी है वो कितने है, इतने खड़ा जी। तो वह कह लगा भी फिर जड़ा मेरा तीजा पुत्र है वो कितने, कहता जी वो ए खड़ा है। तो कहता चौथा पुत्र है तो वह कितने है, वो कहता जी ए खड़ा है। वो कहता फिर तो तुसी सारे तो इत्थे खड़े हो तो मेरी दुकान का की बनेगा, भाई दुकान के उत्ते तुहाडा कोई भी नहीं पहुंचया तो दुकान तो लुटी जाएगी। उसके अपने दीवे बुझ रहे हैं, उसके अपने शटर जड़े हैं गिर रहे हैं जिंदगी के, लेकिन उसनों हाले भी उस सेठ नूं अपनी दुकान का पिया होया कि मेरा कोई भी पुत्र उत्थे उस दुकान को संभालने वाला नहीं है। तो बिरध भयो सूझे नहीं, कुछ सुझदा नहीं उस वेले, काल पहुंचो आन कि वो जड़ी अवस्था जड़ी सहम की अवस्था है वो आ गई, काल नेड़े आ गया, हुण इस संसार तो जाना ही जाना है। कहो नानक नर बामरे, हे बामरे, हे मनुख पागल मनुख बेवकूफ मनुख, क्यों ना भजे भगवान। भाई तू भगवान का भजन तू क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, तां ही ये सहम की अवस्था में आया, इस करके जीवन की बाजी तू हार के जा रहा है। फिर दसी उस गल अगे नौवें पातशाह सानू समझा रहे हैं कि धन दारा संपत सगल, जो संपत अपनी कर मानी छिन मैं पाई पराई। ये सानू गुरु तेग बहादुर साहब जी ने सानू बख्शिश की है दूजे पदे अंदर, धन दारा संपत सगल जिन अपनी कर मान। हे भाई धन स्त्री घर की नार बहुत हित जांस्यों, सदा रहे संग लागी, जब है हंस तजी है काया प्रेत प्रेत कर पागी। सब तो नियरेस्ट रिलेशन वाइफ का, लेकिन उस वक्त उन्हें भी साथ नहीं देना।
दारा तो भाव स्त्री है, संपत सगल सारी संपत्ति सारी जायदाद, मूवेबल इमूवेबल, जिन मान मता समझ ना मन, आप जिन जिन मान जिसने इनू मन्या है कि ये मेरी है, अपनी कर मान अपनी जान के जिसने इसनू मन्या है, इनमें कछ संगी नहीं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ भी तेरे नाल ਜਿਹੜਾ है वो नहीं जाना। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਨ ਤਨ ਜੈ ਤਾ ਕੋ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸਿਉ ਨੇਹੋ ਨਾ ਕੀਨ, ਕਿ ਜਿਨੇ ਤਨ ਔਰ ਤਨ हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पाउन वजाया, वजाया वाजा पाउन 9 द्वारे प्रगट की है, 10वां गुप्त रखाए। सारे शरीर के जड़े साढ़े अंग हैं चालू किए उन्होंने, साढ़े ज्ञान और कर्म इंद्रिय जड़े हैं उन्होंने चालू किया। जिस परमात्मा ने तेनू शरीर दिता, धन दिता, संसार दे विच गुजरान दिता, तू उस नाल प्यार ना पाया, तू उहदे नाल प्यार नहीं पाया, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ ਕਿਉਂ ਡੋਲਤ, ਅਬ ਕਿਉਂ ਡੋਲਤ ਦੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਨ ਤਨ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਦਿਓ ਅਰ ਜੈ ਨੀਕੇ ਧਾਮ, 12 ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ कि तन और धन संपै सुख दियो। संपै का मतलब धन, तन और धन जिसने सानू दिता है, सुख दिते सानू, सुख आराम दिते, और जह नीके धाम, सोहने सानू बिल्डिंग दिते, सोहने घर बैडरूम सानू दिते, आराम नाल सोईए, एसी लवा दिता, साडा सारा कुछ कर दिता, साडे ऐशो आराम दे सारे जिहड़ी चीज़ां हन वो परमात्मा ने साडे वास्ते जुड़ा दित्तियां, वनस्पति बना दित्ती, फल फ्रूट बना दिता, सोहनी हवा शीतल हवा बना दी, जड़ा ऑक्सीजन सानू दे दी, साढ़े शरीर दे विच ताकत भर दी। तो की होया कि असी कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहे ना राम, कि हे मना सुन उस परमात्मा दा जिन्हें तेरे ते इन्नी दया की है, तू उसका जड़ा है उस सिमरन क्यों नहीं करता। क्यों कि सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोई। परमात्मा ही सारे सुख देने वाला है, उसके बराबर का होर कोई संसार में दूजा नहीं है। कि दूजा तां करिए ना कि जे कोई उस परमात्मा तो इलावा कोई होए, भी परमात्मा नाल असीं अपना प्रेम ना पाइए, परमात्मा की गल ना मनीए, गुरु की गल ना मनीए, तो असीं किसी होर दी उहदे बराबर दूजा है उस नाल असीं प्यार पा लईए। भाई नहीं, सुख दुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोई। सानू सुखां दी दाता देने वाला परमात्मा तो सिवा होर कोई नहीं है। कहो नानक सुन रे मना तह सिमरत गत होए। नानक आखदा है कि हे मना सुन, उस परमात्मा का नाम सिमरना ही इस अवस्था दे विच जिहड़ा है, इस जिहड़ी सहम की अवस्था है, उस तो निकलिया जा सकता है कि जे जिंदे जी रहिंदे होए उस परमात्मा का आपां सिमरन करांगे। धन गुरु तेग बहादुर साहब सानू एक गल होर समझाते हैं कि इस अवस्था के अंदर जिहड़ी शुरू तो उन्होंने गल कही, अब मैं कहाँ करो री माई, सगल जन्म विखिया स्यों खोया, सिमरियो ना है कन्हाई। ये रहाओ की पंक्ति की जिहड़ी गल है, उत्थे एक प्रमाण सतगुरु जी ने गुरबाणी भी सानू बख्शिश किया होया है। अब मैं कौन उपाव करूं, हे भाई हुण मैं केड़ा यतन करा, जै विद मन को संसा चूकै, पाओ निध पार परों। मैं ये जड़ा संसार दे विच जड़ा मैं इस डके डोले खा रहा हाँ, इस संसा जड़ा है मेरा किवें जड़ा है ये दूर होवे, जिस नाल मैं इस जड़ा विषय विकारां दा समुंदर दा ये जड़ा खजाना है, ये समुंदर है, इस तो मैं किवें जड़ा है वो पार लंघ सका। जै विद मन को संसा चूकै, पाओ निध पार परों। जिस तरह मेरा मन दा सहम मुक जाए अते मैं संसार समुंदर तो पार लंघ जावां, मैं की यतन करा, जिस तरीके नाल मेरा जड़ा है ये सहम दूर हो जाए, मैं संसार समुंदर तो पार लंघ जा, परों मैं पाए लंघ जावां। फिर वही गल जिहड़ी सतगुरु जी ने सानू समझाई है कि सगल जन्म विखियन स्यों खोया, सिमरियो ना कन्हाई। अब सतगुरु फरमा रहे हैं
ਤਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਕ 685 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਮ ਪਾਏ ਕਛ ਭਲੋ ਨਾ ਕੀਨੋ ਕਿ ਮਹਿ ਭਾਈ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਨਮ ਪਾਏ ਕਛ ਭਲੋ ਨਾ ਕੀਨੋ, ਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕ ਡਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਡਰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਹਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇਰੀ। ਤੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਕਰਮ ਕੁਟਲਤਾ ਜਨਮ ਕੁਬਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਭੈੜੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਵਿਖਿਆ ਅਜੂ ਸੁਰਤ ਸੁਖ ਆਸਾ, ਮੇਰੇ ਹਾਲੀ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ, ਮੈਂ ਹਰੀ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ। ਯਹ ਜੀ ਸੋਚ ਤਰੋਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਅਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਰੋਰੀ ਮਾਈ, ਸਗਲ ਜਨਮ ਵਿਖਿਆਨ ਸਿਉ ਖੋਇਆ, ਸਿਮਰਿਓ ਨਾਹੇ ਕਨਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਗੁਰਮਤ ਸੁਨ ਕਛ ਗਿਆਨ ਨਾ ਉਪਜੋ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਵੀ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਨਕੇ ਚਿਤ ਕਠੋਰ ਹੈ ਸੇ ਬहे ਨਾ ਸਤਗੁਰ ਪਾਸ। ਕੋਈ ਵਲ ਚਲ ਕਰ ਝੱਤ ਕੱਢ ਦੇ, ਫਿਰ ਜਾਏ ਬहे ਕੁੜਿਆਰਾ ਪਾਸ। ਕੁੜਿਆਰ ਕੁੜਿਆਰੀ ਜਾਏ ਰਲੇ, ਸਚਾਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤਗੁਰ ਪਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਡੋਲ ਡੋਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਸ ਜਿਉ ਉਦਰ ਪਰੋ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸੂਝ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਪਸ਼ੂ ਵਾਂਗ ਨਿਤ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਖਾ ਕਰਕੇ, ਪੱਠੇ ਖਾ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਸੁਨ ਕਛ ਗਿਆਨ ਨਾ ਉਪਜਿਓ, ਪਸ ਜਿਉ ਉਦਰ ਭਰੋ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਸ਼ੂ ਵਾਂਗਨ ਆਪਣਾ ਉਦਰ ਭਰਿਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਧ ਪਛਾਨੋ, ਤਬ ਹਉ ਪਤਤ ਤਰੋ। ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਰਧ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਬਾਣਾ ਪਛਾਣ ਲਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਤਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਸਹਿਮ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ। हे ਕਰਤਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਯਕ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਅਰਜ਼ ਦਾ ਬੇਨਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਗੁਫਤਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਖੀ। ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ, ਪੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ, ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਦਰ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ ਭਾਵ ਕੰਨ, ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਸੁਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕਿ ਦਰਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ। हे ਕਰਤਾਰ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ। ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ, हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤੀ ਹੈ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਭ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰਾ ਹੈ। ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਅਬ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲ ਦਾਨੀ। हे ਮੇਰੇ ਦਿਲ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਮਮ ਸਰ ਮੁਏ ਅਜ਼ਰਾइल ਗ੍ਰਿਫਤੇ, ਦਿਲ ਹੇਚ ਨਾ ਦਾਨੀ। ਮਮ ਸਰ, ਮੈਨੇ, ਮਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ, ਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਰ, ਮੂਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲ। ਅਜ਼ਰਾइल ਗ੍ਰਿਫਤੇ, ਤੋ ਇੱਥੇ ਅਜ਼ਰਾइल ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ
ਜਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦਿਲ ਹੇਚ ਨਾ ਦਾਨੀ, ਭਾਵ ਹੈ ਦਿਲ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਹਨ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨ ਪਿਸਰ ਪਦਰ ਬਿਰਾਦਰਾਂ ਕਸ ਨੇਸ ਦਸਤੰਗੀਰ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਸਤਰੀ ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ, ਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸਤਰੀ ਜਨ, ਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਜਨ ਦਾ ਭਾਵ ਸੇਵਕ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਜਨ। ਇਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਪਦਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪਿਓ। कस मैंने कोई भी, नेस नेसत ना अस्त नहीं है, दस्त हथ गीर पा फड़न वाला, दस्तन गीर हथ फड़न वाला। सो अज असी ये सोच रहे हैं कि आखिर व्यफ्तम कस ना दारद चूं सबद तकबीर, जदों आखिर नूं मैं डिगा, डिगा भाव है कि जिस वेले बेख्तम मैं जिस वेले डिग गया, धरती ते डिग गया, कस ना दारद, उस वक्त मेरे अंदर कोई भी जड़ी है वो ताकत नहीं रहनी। आखिर मैं डिगा भाव जदों मौत आ गई, जदों मुर्दे नूं दबन वेले दी नमाज जड़ी है पढ़ी दी है, कोई भी मैनू इत्थे रख नहीं सकता। आखिर अंत नूं बेफ्तम, बेफ्तम मैं डिगा, उस्तादन डिगना, कस कोई भी दारद रखदा रख सकदा, दासदन रखना, चूं जदों सवद सवद होएगी तकबीर, वो नमाज जो मुर्दे दे दबन वेले पढ़ी जाएगी। तो ये विचार गुरबाणी दे विचों असीं लै करके धन गुरु तेग बहादुर ने जिहड़े वचन कहे हन उन्हां नूं दुबारा असी जिहड़ी है विचार करके असी इस गल ते पहुंचे हैं कि कहो नानक यह सोच रही मन, हर जस कबू ना गए। विचार करदे अनेकां भुलां हो गई हन, मैं साध संगत पासों उसकी खेमा मंगदा हाँ और अरदास करो कि सच्चे पातशाह गुरबाणी दी विचार करन दा बल बुद्धि बख्शे। आओ गज के फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।